Hello friends, I am back with my next video on my YouTube channel Ravi Sir Biology. In this session we will talk about implantation. I'm recalling you what I have taught in my previous lectures. Male reproductive system, female reproductive system, their fertilization, menstrual cycle, everything is been completed so far, and now today we are reaching after fertilization the formed embryo where it will be settled. Means this attachment of formed embryo to the endometrium wall of uterus. This process is called implantation, and this is how we have to study here. This is what we have to study here in this session. Look at the board. I have started with the diagram of this embryo. This is an embryo, blastula. This blastula having cells of blastocyst, that what we have to study here, how they are going to settle here. Let me clear one thing first. This is a diagram of female reproductive system. This is a female reproductive system. This is a rough sketch. I just want to tell you that sperm is here and ovum is here. Means at the ischemic ampullary region, or basically we can say at ampullary region of oviduct, fertilization takes place. And the formed embryo has to settle, has to attach with the endometrium wall. There is a wall, endometrium. Three walls are there in uterus. Endometrium, the innermost, the outermost layer of muscle is perimetrium, and in between perimetrium and endometrium, myometrium is present. So the fertilization happens. The result of fertilization is zygote, develops into an embryo, and that stage of embryo is called blastula. That blastula has to settle, has to attach. The formed embryo, blastula, has to attach with the endometrium for the further nourishment, for the complete gestation period, and it has to come from here to here, or here left or right of the wall of this uterus, endometrium. So it has to come. This process of attachment of this embryo here, it is called implantation. So in this topic we have to study how the embryo which is produced has to attach with this wall. So I have drawn a female reproductive structure. This is one of the wall I have drawn for your understanding. Let me start with this, the process, the definition. First, I have made the definition in the red color marker. Attachment of embryo in the endometrium. And the embryo has several stages, marula, blastula, that we have to study in embryonic development here. Today we have to talk about only blastula is a stage of embryonic development which has to come from site of fertilization to the endometrium wall of uterus. Listen. So this happens, usually it happens, the implantation, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे. जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो एम्ब्रियो बना है वो ओविडक्ट में बनता है, और ओविडक्ट से एंडोमेट्रियम वॉल में आके और उसे सेट होना होता है जेस्टेशन पीरियड, पूरे जेस्टेशन पीरियड के लिए. तो वो यहां से यहां तक जब सेट होता है, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं. ब्लास्टुला का सेट होना, इट्स अ स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. उस डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ट्रोफोब्लास्ट होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन ट्रोफोब्लास्ट है, इसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट सेल्स हैं, हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में. तो वो यहां से आके यहां सेट हो रहा है, इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं. दिस इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस आफ्टर 5 to 6 days of fertilization. In between 5th to 7th day of fertilization, we can say usually ये 7th day पे fertilization के बाद, fertilization हुआ उसके 7th day यहाँ पे आके इम्प्लांट होता है, सेट होता है एंडोमेट्रियम वॉल पे. ठीक है. अब ये एंडोमेट्रियम वॉल कैसे स्टार्ट होता है, कैसे इस फंक्शनिंग इसकी स्टार्ट होती है इम्प्लांटेशन की, इसका एक मैकेनिज्म है जिसकी स्टडी अब हम करने जा रहे हैं. सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन.
फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये प्रोसेस शुरू होगा, डेसिडुअल सेल रिएक्शन होता है। डेसिडुअल सेल रिएक्शन इज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल स्ट्रोमल इडेमा। ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, व्हाई इट इज कॉल्ड इडेमा। स्ट्रोमल, लोकल स्ट्रोमल टिश्यूज आर देयर, तो इसको स्ट्रोमल कहते हैं। लोकल इसलिए कहते हैं कि एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है गोल सा स्ट्रक्चर, इस ब्लैक कलर का जो बाउंड्री है ट्रोफोब्लास्ट है इसका एम्ब्रियो का। ये एम्ब्रियो जो है, इस एम्ब्रियो का जो एरिया है, सिर्फ जो वो पार्ट एंडोमेट्रियम का, ये ब्लू कलर का एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जिससे ये अटैच्ड है, उस पर्टिकुलर एरिया को लोकल एरिया कहेंगे, जिससे ट्रोफोब्लास्ट अटैच्ड है। यहां देख सकते हैं, यहां से यहां तक मैंने इस ब्लू कलर को दिखाया है, यहां पे नहीं दिखाया। तो ये जो है ना, ये ब्लू कलर जो स्ट्रक्चर है वही है लोकल स्ट्रोमल एडेमा। एडेमा इसलिए कहते हैं एक स्वोलन पार्ट होता है, स्वेलिंग जो होती है वो एडेमा होता है। तो थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है जहां पे ये आके अटैच्ड होता है, जहां पे अटैच हुआ थोड़ी सी स्वेलिंग वहां स्टार्ट हो गई, और स्वेलिंग के बाद इसमें कनेक्ट हो जाता है, कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां देखिए ये स्वेलिंग हो गई थोड़ी सी, ब्लू कलर में मैंने दिखाया है, लोकल स्ट्रोमल एडेमा इसलिए कहते हैं। एक बार फिर से जान लीजिए इसको लोकल स्ट्रोमल एडेमा क्यों कहते हैं। लोकल का मतलब द एरिया विच इज वेरी वेरी क्लोज टू द एम्ब्रियो इज कॉल्ड लोकल स्ट्रोमल टिश्यूज एंड एडेमा इज अ स्वोलन पार्ट। तो ये थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई जहां से ये अटैच्ड होता है, इसीलिए इसको लोकल स्ट्रोमल एडेमा कहते हैं। ये डेसिडुअल सेल रिएक्शन के बाद होता है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डेसिडुअल सेल रिएक्शन विच प्रोड्यूस लोकल स्ट्रोमल एडेमा। तो उसका फॉर्मेशन हो गया। अब ये फॉर्मेशन हो गया, अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन हो जाता है जो पेनिट्रेट करता है इसको स्ट्रोमल टिश्यूज को, और वो अटैच्ड हो जाता है इस ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट मींस द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दैट ब्लास्टुला। उसके अंदर जो सेल्स हैं ये दिखाई दे रहे हैं, वो एम्ब्रियोनल नॉब्स हैं, और इसके ऊपर जैसे ये अटैच्ड हो जाएगा, जब ये अटैचमेंट हो जाएगा तो इसके ऊपर एंडोमेट्रियम का एक, यहाँ पे ये रेड कलर में मैंने एक लेयर दिखाया है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रेड कलर एम्ब्रियोनिक लेयर डेवलप हो गया है, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक लेयर यहाँ पे डेवलप हो गया। तो इस तरह ये जो एंडोमेट्रियम है, here I have mentioned also endometrium is been produced. It's a covering over the embryo which is developing, which is attached on the wall of uterus in endometrium. तो ये यहाँ अटैच हो गया और इसके ऊपर से एंडोमेट्रियम ने कवर कर दिया, एक अच्छे से प्रोटेक्ट कर दिया, पूरी कवरिंग दे दी। अब इसमें क्या होगा देखो, जस्ट लुक एट द डायग्राम। दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, इसके अंदर एम्ब्रियोनल नॉब है और ये अटैच्ड है। यहाँ पे कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन हो गया। दिस कोरियोनिक विलाई इज नथिंग बट यू विल बी नोइंग एक्सचेंज ऑफ वेस्टेज, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल एंड ऑल द थिंग्स इज जस्ट इन बिटवीन मदर एंड द डेवलपिंग चाइल्ड। माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको नरिशमेंट की जरूरत होती है और वो नरिशमेंट पाता है माँ से। तो वो माँ से और उस बच्चे में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की नीड होती है, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो चाहे न्यूट्रिटिव मटेरियल हो, वो पॉसिबल होता है इसी की वजह से। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट लिखा है मैंने, ब्लू कलर का एक पैकेट बनाया है, सेल्स हैं एक्चुअली वो जो होते हैं ना ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स होते हैं। वो ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट एक्चुअली एक पैकेट होता है जो एक ऐसे सेल में कन्वर्ट हो जाता है जो सेल न्यूट्रिएंट्स को कैरी किए हुए होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी किए हुए हैं ग्लाइकोजन फिल्ड, इसलिए मैंने मेंशन किया है कि जब आप ये नोट्स आप बनाएंगे तो वहां पे ग्लाइकोजन फिल्ड लिख सकते हैं, which will be helpful to you understand that glycogen is present into it. It means that it will be acting as nutrition. It provide nutrition to developing embryo. embryo जो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम हो जाता है इस फाइब्रोब्लास्ट का। तो इस तरह ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कोरियोनिक विलाई से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते हैं और यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू ब्लड वेसल से ही यहाँ पे इस वॉल में अपीयर्ड है और टच है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर हो गया जिस स्ट्रक्चर से हम इम्प्लांटेशन को समझ सकते हैं। अब अगली बात करते हैं कि डेसिडुअल सेल रिएक्शन जब होता है तो ये लोकल स्ट्रोमल एडेमा बनता है।
पर ये स्टोमल एडेमा बनने के बाद क्या क्या और चेंजेस होते हैं डिस्कस ये भी करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स का, व्हाट में चेंजेस अकर्स आफ्टर डेसिडुअल सेल रिएक्शन। इस डेसिडुअल सेल रिएक्शन को DCR भी कहते हैं। So if there will be a question what is DCR and what will be product of DCR, what changes are occurring in the DCR, you will write, first of all you will write DCR is decidual cell reaction and the product of decidual cell reaction is local edema will be produced। यहाँ पे local edema, local stromal edema will be produced, वो produced हो जाएगा। इसको local stromal edema क्यों कहते हैं ये मैंने बता ही दिया। local का मतलब है कि वो एरिया जो इस एम्ब्रियो के पास हो एंडोमेट्रियम का, उसको लोकल एरिया कहेंगे। एडेमा का मतलब कुछ स्वेलिंग पार्ट, कुछ स्वेलिंग हो जाता है, सूजन हो जाता है उसमें, तो खुला हुआ सूजा हुआ पार्ट ये है ब्लू कलर। और स्ट्रोमल कहते हैं क्योंकि टिश्यूज वो स्ट्रोमल टिश्यूज में होता है, तो इस तरह इसको लोकल स्ट्रोमल एडेमा कहते हैं। तो इसमें चेंजेस क्या होते हैं इस पे हम फोकस करते हैं। द वेरी फर्स्ट चेंज, परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल एंड वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम इंक्लूडेड। जैसे ये ब्लड वेसल जो है ये और एंडोमेट्रियम वॉल के बीच की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस पॉसिबल होगा, आसानी से सब्सटेंसेस पॉसिबल होंगे और इसका नरिशमेंट प्रॉपर्ली हो सकेगा और ये एम्ब्रियो मदर से कनेक्टेड प्रॉपर्ली होगा। सेकेंड है फाइब्रोब्लास्ट चेंज इनटू ग्लाइकोजन फिल्ड स्ट्रक्चर। एज आई सेड यू, ये जो फाइब्रोब्लास्ट है ये ग्लाइकोजन फिल्ड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन फिल्ड सेल अपीयर, ढेर सारे सेल्स होते हैं उसमें ग्लाइकोजन अपीयर हो जाते हैं और इसी को ग्लाइकोजन फिल्ड सेल कहते हैं। एक्चुअली ग्लाइकोजन फिल्ड सेल है ये, या स्ट्रक्चर कह सकते हैं। Here I have mentioned cell can be also written here. कोरियोनिक विलाई विल बी स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग। यहाँ पे कोरियोनिक विलाई देख सकते हैं आप, वो पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया, पेनिट्रेट करके और वो एक एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे अटैच्ड हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का काम करना शुरू कर देगा। फोर्थ है एंडोमेट्रियम गेट डिसरप्टेड एंड ऑब्वियसली द थिंग विल बी हैपन, सो एंडोमेट्रियम आल्सो गेट डिसरप्टेड विद दिस अपीयरेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लांटेशन। आई एम जस्ट रिकॉलिंग यू वंस अगेन to bind this topic of implantation. What is implantation? As I told you, this attachment of embryo which is formed after fertilization into the endometrium wall. This complete process is called implantation. Implantation के बाद ये अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि implantation कब होता है? फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना और जाइगोट डेवलप होने लगा, 7th डे तक आते आते 5th 6th या हार्डली 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन या 6ठे दिन या मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 7th डे या मोस्टली वो 7th डे ही होता है। 7th डे पे वो क्या होगा, वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जो है ब्लास्टुला के फॉर्म में हो जाता है और वो ब्लास्टुला यहाँ आके सेटल होता है एंडोमेट्रियम वॉल पे। इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये हो गया पीरियड। यूजुअल अगर एक डे परफेक्ट 1 डे बताना है कि वो पर्टिकुलर किस डे पे इसका इम्प्लांटेशन होता है तो आप लिखेंगे 7th डे। वैसे 5th 6th और 7th तीनों में हो सकता है पर वो कॉमनली 7th डे में उसका इम्प्लांटेशन प्रॉपर्ली हो जाता है वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम में। अब ये सब होता है ऐसा तो फिर क्या होता है, तो एक डेसिडुअल सेल रिएक्शन होता है। जैसे इम्प्लांट किया डेसिडुअल सेल रिएक्शन हुआ और डेसिडुअल सेल रिएक्शन के तुरंत बाद एक रिजल्ट बनता है LSO, लोकल स्ट्रोमल इडेमा। लोकल स्ट्रोमल एडिमा का फॉर्मेशन होता है और ये लोकल स्ट्रोमल एडिमा क्या करता है, वो यहाँ पे एक डेवलपमेंट कर देता है, थोड़ा एंडोमेट्रियम पे थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है और फिर वो कंसर्न हो जाता है इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के। फिर जब ये चेंजेस होते हैं तो और क्या होता है, तो इसके अंदर ये ट्रोफोब्लास्ट है यही अटैच होता है। एंडोमेट्रियम यहां से एक लेयर डेवलप कर लेती है इस एम्ब्रियो के ऊपर। ये रेड कलर में मैंने एंडोमेट्रियम ही दिखाया है, यहाँ मेंशन नहीं किया है मैंने। सो दिस इज एंडोमेट्रियम व्हिच इज कवरिंग ऑलमोस्ट ओवर द एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड
then the blood vessels are appeared which will be very means the visibility in between the embryo and this blood vessel will be very clear, endometrium will be very clear, बहुत ज्यादा permeability डेवलप हो जाएगी। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स के साथ। ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स क्या करेंगे, जो एम्ब्रियो यहाँ डेवलप हो रहा है उस डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। और वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कनेक्शन इन फाइब्रोब्लास्ट में जो ग्लाइकोजन है नरिशमेंट के लिए यहाँ भेजता है, कोरियोनिक विलाई कहते हैं। आप जानते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ नरिशमेंट, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल विल बी डन बाय दिस कोरियोनिक विलाई व्हिच इज अ कनेक्शन बिटवीन द मदर टिश्यू एंड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये ग्लाइकोजन फिल्ड हो जाएगा। क्या क्या चेंजेस होते हैं डीएसआर में, डीसीआर में, रेसिडुअल सेल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस होते हैं? फर्स्ट है परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल एंड वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम इंक्रीजेस। जो एंडोमेट्रियम है वॉल उसमें और ब्लड वेसल्स इन दोनों की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी तो इसके डेवलपमेंट में ही फायदा होगा, इसीलिए सबसे पहला चेंज ये होता है। दूसरा चेंज होता है जो ये फाइब्रोब्लास्ट हैं ये जो है ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैंने बताया ही नरिशमेंट के लिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। थर्ड है कोरियोनिक विलाई पेनिट्रेट्स, यहाँ पे कोरियोनिक विलाई है, ये रेड कलर में मैंने दिखाया है, वो पेनिट्रेट कर देता है। और फोर्थ है एंडोमेट्रियम गेट डिसरप्टेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द चेंजेस, दिस इज ऑल अबाउट चेंजेस ड्यूरिंग द DCR and this is all about the implantation in human being. So today's session we have completed of implantation, and in next session we will talk about the mammary gland and how the milk is produced in the females for the nourishment of their baby. Stay with me for more updates, for more videos of this chapter. Thank you.